Good morning, students. Welcome back with next topic, application part of Biot-Savart's law. And in this topic, we have to find magnetic field intensity at any point on the axis of a current carrying circular coil. यहाँ पर आपको एक circular coil नजर आ रही होगी and radius of that coil is A and that circular coil carries how much current? I. And the purpose is to find the magnetic field intensity at any point on axis whose distance from the center of the coil is x. अब यहां पर जो सर्कुलर कॉइल है वो सर्कुलर शेप में नजर नहीं आ रही. इसका सीधा सा मीनिंग क्या है? दिस सर्कुलर कॉइल इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. और एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि गलत है. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट बाय यूजिंग Biot-Savart's law, we have to consider a current element. Now let us consider a current element at point A. A point पर अगर हम एक current element consider करें, length of that element is dl. Okay. Now in order to apply Biot-Savart's law, we must know about the distance of the point from the current element, and let the distance is r, and which is equal to under root of x square plus a square. According to Biot-Savart's law, the strength of magnetic field due to a current element is given by mu naught upon 4 pi I dl sine of theta upon distance square. This is the mathematical form of Biot-Savart's law. और हमें इस current element के लिए इसको use करना है. Okay? As per our diagram, the strength of magnetic field at point P is given by mu naught upon 4 pi. Current through the element is I. Length of the element is dl and sine of 90. Why we are using this 90? 90 को यूज करने के पीछे क्या रीजन है वो आप ध्यान दें. दिस कॉइल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो ये जो कॉइल है इसका हाफ पार्ट अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है एंड हाफ पार्ट इज बिहाइंड द बोर्ड. ओके, ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से है. इट मींस यहां जो हमने करंट एलिमेंट कंसिडर किया है दैट करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, नाउ ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है और ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग साइन ऑफ 90 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर एंड दैट डिस्टेंस इज r व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वी गेट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, साइन ऑफ 90 इज 1, तो वी कैन राइट इट एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें कि इसके डायरेक्शन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ओके, अब यहां पर आप अगर ध्यान दें कि इन केस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इन द शेप ऑफ concentric circles. They are in the shape of concentric circles. Now, in order to find the direction of magnetic field intensity at any point, हम उस point से पास होने वाली magnetic field lines के अगर हम एक tangent draw करेंगे, that tangent represent the direction of magnetic field intensity at that point. किसी भी point पर, जिस point पर हमें magnetic field intensity का direction चाहिए, उस point पर हम एक tangent draw करें, that tangent gives the direction of magnetic field intensity. Okay? So we know that in case of straight conductor magnetic field lines they are in the shape of concentric circles. अगर इसी straight conductor को मैं इस तरह से represent करूं, in such case जो magnetic field lines हैं वो कैसी होगी? They are in the shape of concentric circles. अब ये एक straight conductor है and we have to find magnetic field intensity at this point. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहां पर भी एक आपको करंट एलिमेंट नजर आ रहा होगा, dl इज द करंट एलिमेंट एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन P पॉइंट से पास हो रही है उस P पॉइंट से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर हम टेंजेंट करेंगे दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट है और ये टेंजेंट है टू दैट सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन
और इन दोनों में एंगल कितना है 90। तो ये जो एंगल है दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90। लेकिन एग्जाम में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सीधे सीधे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन हम यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं x, मींस डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग px। इसका डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग px। ओके, नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, उस केस में ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। चेक कर सकते हैं, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो इस लाइन के अलोंग आएगा, और इसको अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसके अलोंग आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस मैग्नेटिक फील्ड इनटू टू कंपोनेंट, perpendicular to the axis and along axis. The perpendicular to the axis component will be equal to dB cos of theta, क्योंकि किसी भी वेक्टर को एंगल के बेस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे कॉस कंपोनेंट आएगा, और उस बेस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे साइन कंपोनेंट आएगा। तो वी हैव dB sin theta। अब आप आगे ध्यान दें, इफ वी कंसिडर एनी डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट ऑफ सेम लेंथ, it will also produce same amount of magnetic field, but in this direction. Again, if this angle is theta, this angle is also theta, और उसके अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। Again we can resolve this magnetic field into two component, dB cos theta, and this component will be dB sin theta। तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि फॉर एनी डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट दीज कंपोनेंट dB cos theta कंपोनेंट दे कैंसल्स आउट बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल है और उनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वेयर एज द dB sin theta कंपोनेंट एज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन दे एड्स अप, देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is given by summation of all such component. Therefore, we can write magnetic field intensity is equal to this. Summation sign for a small element can be replaced by integration. Hence, it can be written as integration of dB sin of theta. Okay? Integration of dB. Value of dB is mu naught upon 4 pi I dl x square plus a square and sine of theta. Now look at the figure, triangle POA. Sine of theta is perpendicular upon hypotenuse, that is equal to a upon x square plus a square की पावर हाफ। इसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट थ्रू द एलिमेंट कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल वो भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फॉर ऑल एलिमेंट ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, दोनों की पावर ऐड होकर आ जाएगी 3/2। विद इन इंटीग्रेशन वी हैव ओनली डीएल। ओके, डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब है इस तरह के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है उन सबका सम, मींस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज समीशन ऑफ ऑल सच एलिमेंट विच इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई ए। ओके, 2 पाई और 4 पाई को अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास जो रिलेशन में जो टर्म्स बचेगी, ये वैल्यूज बचेगी, वो है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई 4 पाई कैंसिल, सिर्फ बचा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, and this is the required value of magnetic field intensity at any point on the axis, and direction of this magnetic field intensity, it is along axis। इस magnetic field intensity का क्या डायरेक्शन है, along axis।
In case of a circular coil, the direction of magnetic field intensity is given by right hand palm rule. अब right hand palm rule क्या कहता है कि if we turn the fingers of our right hand along the direction of the current, then thumb points in the direction of magnetic field intensity at any point on axis. Okay? तो राइट हैंड पाम रूल को हमें यूज करना आना चाहिए. दिस एक्सप्रेशन इज द मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इट इज फॉर द सिंगल कॉइल. इन केस व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन राइट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NI A² अपॉन 2x² A² raised to power 3/2. Okay. Now, as we know that the strength of magnetic field on axis is given by mu naught NI A² upon 2x² A² raised to power 3/2. Okay. If this point lies far away from the circular coil, in such case, as x is very much greater than a, we can ignore a and we can write the strength of magnetic field as mu naught NI A² upon 2x cube. Okay. First special case. Now, if the point lies at the center, if this point lies at the center, the value of x became equal to 0. If point P is at center of coil, value of x became equal to 0. In such case, the strength of magnetic field according to this relation, it will be equal to mu naught NI A² upon 2, as x is 0, A² raised to power 3/2, it will be equal to A cube. इसको A² से cancel हो जाएगा और we have B is equal to mu naught n times of I upon 2A. This is the expression for magnetic field intensity at center of the coil. And direction of magnetic field intensity at the center is also given by right hand palm rule. Okay.